we have seen India is a multicultural society. Okay, there existence of the many religion in India. We have seen Hinduism, majority of the Indian follow Hinduism, and the holy book of Hinduism is Bhagavad Gita. And then we have seen after Hinduism there is a Islam, and the holy book of Islam is Quran. Then there is a Christianity. The holy book of Christian is Bible. Then there is a Sikhism. The holy book of Sikhism is Guru Granth Sahib, and the founder of Sikhism is a Guru Nanak. And then there is a Buddhism. Buddhism follow the teaching of Lord Gautam Buddha. Then there is a Jainism. Jainism is followed by the teaching of Lord Mahavir. Then followed by Judaism and the Zoroastrian. Okay, we have seen all this religion that exist in India. Then we have seen the caste-wise composition on the also. Even we have seen the gender-wise composition also. Let's move to the linguistic diversity. I think I have done with linguistic diversity also, class. Yesterday I explained you about last lecture. I explained you about linguistic also. Please respond me. Linguistic भी मैंने explain किया था कि in India there is many language people speak different many different languages. Okay, but 22 official language are there in okay, and 22 official language are there in the Constitution of India. Okay, so India is not only different in the religion but also on the region basis. Okay, what is a regional variation? Now let's see what is a region variation. In India there are 29 states and the 7 union territories. State differ in the terms of the quality of the people, culture, and the resources. Therefore, there are the regional variation. Variation का मतलब होता है difference among the states. See, India में जो है, we follow many culture. Indian society has many culture, many caste, many traditions. People having different food style, different lifestyle. But India is not only differ in the religion. We have seen the various religion that exist in India, but religions के साथ-साथ India differ in variation also, geographical variation also. Okay, let's see how Indian states, India के जो states है, at present India has 29 states, and how each and every state is different from one another. Let's see one by one. The first one is literacy. Okay, when I say literacy, a person who can both read and write with understanding in any language is term as literate. हम लोग literate person किसको बोलेंगे? The person जो लिख भी सकता है, बोल भी सकता है और कोई लैंग्वेज को समझ सकता है. ओके, इंडिया में भी लिटरेसी रेट डिफरेंट है. सम स्टेट्स लाइक द केरला में, मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा, द लिटरेसी रेट इज वेरी हाई, whereas in Bihar, Arunachal Pradesh, Rajasthan and Jharkhand the literacy rate is low. That means we can see the difference. The states like Kerala, Goa, these states have the high literate people, whereas the Bihar, Arunachal Pradesh literacy जो है वो कम है. That means people are not literate. That means people are unable to read and write. For instance, Kerala has the highest literacy is about 94%, and Bihar has the lowest literacy of 64%. That means you can see the difference. There is two states in India. That is, one state is Kerala having a 94% of the literate people, whereas this other state in India, that is Bihar, that is only 64%. This is according to census study of 2011. The female literate is very low, especially in the backward areas, and out of this illiterate, the female is very high. That means the female जो illiterate है वो ज्यादा है, especially जो backward areas है country के. That means जो villages area है. Next, birth rate and the death rate. In highly populated and the backward state of the North India like the Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and UP, the birth rate is very high as compared to the literate state like the southern states like the Kerala, Tamil Nadu, Karnataka. You can see the difference in the state. Like for example, again the Bihar, Madhya Pradesh, जहाँ पे birth rate ज़्यादा है. That means people having more than 3, 4, 5 kids. Whereas जो दूसरे states है like Kerala, Tamil Nadu, यहाँ पे birth rate control में है. Okay, also the death rate is high in the backward areas. That means के region जो states है जो ज़्यादा जिनमें ज़्यादा infrastructural facilities नहीं है, okay, वो backward area में अगर high birth rate है तो उनकी death rate भी ज़्यादा है because उनको medical facilities या दूसरी facilities are unable to them. Then there is a urbanization. Urbanization का मतलब होता है शहर. In India there is an imbalance in the term of urbanization. In some region the urban population is increased over a year, whereas in the certain backward areas region the growth of the urban population is slow. Again there is an imbalance between the urbanization. इंडिया में कुछ ऐसे अर्बन एरिया है
जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे एरियाज है जो अभी भी ग्रो नहीं कर रहे. Especially the smaller states like Goa and Mizoram, there is a higher concentration of the population in the urban areas, whereas in the backward areas of Madhya Pradesh and Bihar, there is a low concentration of the urban population. Okay, people prefer to live in the smaller areas of Goa and Mizoram, jahan pe urban areas hai, whereas people don't want to live. That means population base very low over in the states of Maharashtra and Bihar. Okay. Next is the poverty. Now, what is a poverty? About 37 of the population is below poverty line. Now, when I say poverty का मतलब वो situation होती है when people are unable to arrange the food for themselves. Okay, वो person जो है, that is basic need of our lives with food, clothing and shelter. लेकिन अगर कोई person जो है वो food, clothing and shelter, that means 2 वक्त का खाना भी अपने लिए arrange नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं poverty. और इंडिया की 37% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुरेश तेंदुलकर कमेटी ऑफ 2009 में जो सुरेश कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू 37 पॉपुलेशन. एंड देन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन जो 2011-12 में हुई थी उसके हिसाब से दैट इज फ्रॉम 37 इट हैज डिक्लाइन टू 21%. और जो 2014 की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इंडिया में जो है 11.8% पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ओके, जो पॉवर्टी ज्यादा है वो कौन से स्टेट्स में? हाईएस्ट पॉवर्टी इन उड़ीसा फॉलोड बाय द बिहार एंड द मध्य प्रदेश. अगेन यू सी लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट्स में ज्यादा है. एंड गोवा, जम्मू कश्मीर, केरला, ये सब में कम है. देन देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आल्सो. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, वाटर फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये भी जो विलेज एरिया में है वो कम है और जो अर्बन एरियाज में है वो ज्यादा है. लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया इज इक्वली वर्सन. इफ यू सी द ओवरऑल, अपने लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा challenges before Indian economy, उसमें population, poverty, unemployment, these are all the major issue that India is facing today. Unemployment rate इंडिया में बहुत ज्यादा high है. इनफैक्ट इंडिया वो situation पे है जहाँ पे इंडिया के unemployment को बोला गया इंडिया is facing a chronic unemployment. That means कि इंडियन पीपल के पास जॉब नहीं है. ओके, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिट्स इन ऑल द स्टेट्स. इट्स लाइक एक पर्टिकुलर स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के हर स्टेट में है, बट थोड़ा उसका रेट थोड़ा कहीं ज्यादा है और कहीं कम है. फॉर एग्जांपल सी, इंसिडेंस इज वेरी हाई एट ओवर 10% इन द मोस्ट इलिटरेट स्टेट्स ऑफ केरला, गोवा एंड तमिलनाडु. ओके, 10% से भी ज्यादा लोग जो है जो है लिटरेट पीपल, मतलब पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड है केरला, गोवा एंड तमिलनाडु में. लाइक स्टेट्स लाइक उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर लोअर बट द लेबर्स. सी, यहाँ पे रेट्स क्यों हाई है? क्योंकि ये गोवा, केरला में लोग जो है पढ़े लिखे लिटरेट लोग हैं. ना ये लिटरेट लोग जो है वो लोग जो है लोअर लेवल का काम, जैसे लेबर का काम, वो काम नहीं करते, इसलिए एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है. लेकिन मध्य प्रदेश, उड़ीसा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है क्योंकि वहाँ पे लोग लेबर्स का भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको कम वेजेस दी जाती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो इंडस्ट्रीज है, डेट मीन्स के सी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है. बिकॉज इंडस्ट्रीज आर देयर इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर. लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो स्टेट्स, अगेन बहुत सारे स्टेट में इंडस्ट्रीज नहीं है. बिकॉज इंडस्ट्रीज नहीं है इसलिए वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई है. देन देयर इज ए इनकम इक्वालिटी. इंडिया में इनकम इक्वालिटी भी है, हर किसी की सैलरी ज्यादा नहीं है. ओके, द इनकम इक्वालिटीज आर मोस्टली इन द हाईली पॉपुलेटेड states of the Bihar and Madhya Pradesh. That means कि people those who are living in the states like the Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, UP, उनकी जो इनकम इक्वालिटी है, मतलब हर किसी को एक जैसा इनकम रेट नहीं मिलता है, किसी की इनकम ज्यादा है और किसी की इनकम कम है. देन देयर इज ए जेंडर इनइक्वालिटी आल्सो. और जेंडर इनइक्वालिटी मतलब मेल्स, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मेल टू फीमेल रेशियो, मेल्स ज्यादा है और फीमेल्स कम है. सिर्फ हमारी कंट्री में एक ही स्टेट है, दैट इज केरला, जिसमें फीमेल्स ज्यादा है, और जितना भी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स है उसमें मेल्स ज्यादा है. देन लास्ट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक एवरेज इंडियन जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है. ओके, so female are expected to live longer than the male, but in certain states of India life expectancy of the female is
लेस। ओके, ऐसा बोला जाता है कि फीमेल बायोलॉजिकली फीमेल्स ज्यादा जीती है और मेंस जो है वो कम जीते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और मेल्स की ज्यादा है। तो दिस आर द वेरियस रीजनल वेरिएशन दैट एग्जिस्ट इन कि इंडिया की रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंडिया इज a land of the village. As per the census 2011, there are over 6 lakh villages in India and about 68.84% of the Indian population. That means this is, ये जो रिपोर्ट आपके सामने है, this is according to the census report of 2011. यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे कंट्री में जो है 68.84%, that means almost 69% of the Indian population जो है वो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं। ओके, लेट्स सी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। caste system in India, villages caste system is widespread. There is a hardly any village without the caste. जो कास्टिज्म है हमारी कंट्री में कि ये पर्सन ये कास्ट से बिलोंग करता है, दिस पर्सन इज फ्रॉम दिस कास्ट, ये बहुत ज्यादा हाई है। विलेजेस में कोई हार्डली कोई ऐसा विलेज होगा जहाँ पे कास्ट नहीं होगा। एवरी विलेज हैज कास्ट। वो पर्टिकुलर विलेज, पर्टिकुलर एरिया में जो है वो पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही रहते हैं। ओके, ईच विलेज हैज सर्व्ड कास्ट, ऑल्दो न्यू देयर आर सम विलेज इन पर्टिकुलर इज कास्ट डोमिनेंट। दैट मींस कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट है जो दूसरे कास्ट को डोमिनेट भी करती है। दोज आर थिंकिंग दैट उनकी कास्ट दूसरी कास्ट से जो है वो सुपीरियर है। सेकंड, इंटीमेट रिलेशन। In India, villages are face-to-face relationship among the people. Generally, every person knows each other. Now, village में क्या होता है कि हर इंसान एक दूसरे को face to face पहचानता है। Village में people जो है रोज एक दूसरे से मिलते हैं। Okay, they sit together, they chat. Okay, वहाँ पे social media इतना नहीं है, face to face interaction बहुत ज्यादा है। Next, status of women. What is the status of women in the rural India? किस women की position क्या है? See, the status of women in the rural India is much dependent on the men. Okay, मतलब वहाँ पे जो women है उनकी independent status नहीं है, वो लोग जो है ज्यादा depend करती है अपने घर के men के ऊपर, whether their father or their husband. Okay, the women require support of the institutions like the marriage and the family. That means they require the people of the women of the India require marriage. That means in रूरल इंडिया मैरिज इज कंपल्सरी, मैरिज होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, दैट इज कंपल्शन फॉर द वुमेन। द रूरल वुमेन मोस्टली एंगेज इन द इंडोर एक्टिविटीज एंड दे वर्क इन द फील्ड एज वेल। और दैट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन जो है वो इंडोर एक्टिविटीज, दैट इज कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। देयर आर सम वुमेन आल्सो जो फील्ड में भी, एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम करती है। ओके, दे आर मच अटैच टू द फैमिली मेंबर। ओके, और यहाँ पे जो है वो अपनी फैमिली से अटैच रहती है। ऑक्यूपेशन, the rural people are mostly engaged in the agriculture. About 80% of the village people are directly or indirectly connected with the agriculture. That means main occupation in the rural India definitely गांव के लोग हैं, तो रूरल में जो है वो लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं। एंड अबाउट 80% जो वहाँ के लोग हैं, दैट मीन्स विलेज में आउट ऑफ 100% 80% जो लोग हैं वो विलेज में एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Next, size of the population. Majority of the Indian population lives in the village. As per the 2011 census, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि हमारी कंट्री की जो अराउंड 68% है वो पॉपुलेशन जो है विलेज में रहती है, और रिमेनिंग जो भी परसेंटेज बचती है वो गांव, इस शहर में रहती है, दैट इज रूरल अर्बन एरियाज में रहती है। Location pattern. The rural population lives in the 6,41,000 villages. The population in the rural area is scattered rather than the concentrated. At present, only 4,000 villages has population of 10,000. That means ये एक डेटा दिया हुआ है कि कितने villages कितनी जगह ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल रूरल में टोटल 6,41,000 विलेजेस में रूरल पीपल रहते हैं, और जो है वो स्कैटर्ड है। ओके, मतलब हर जगह जगह फैले हुए, छोटी छोटी जगह पे, एक जगह पर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी रेट। डेफिनेटली लिटरेसी रेट जो रूरल इंडिया का है वो कम है। लिटरेसी रेट जो है इंडिया में अर्बन एरिया में ज्यादा है और रूरल एरिया में कम है। ज्यादा लोग जो है वो स्कूल्स नहीं जाते, दे आर अनेबल टू रीड एंड राइट। उसके बाद कंजर्वेटिव एटीट्यूड। पीपल इन द विलेज इंडिया कंजर्वेटिव इन नेचर, दे डू नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस प्रिंसिपल्स। दैट मीन्स उनका कंजर्वेटिव एटीट्यूड है, वो पुराने ख्यालात के लोग हैं, वो मॉडर्न चीजों को नहीं मानते और अपने आप को चेंज नहीं करते। Unemployment rate, the unemployment rate is very high.
रूरल एरिया एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया? डेफिनेटली रूरल इंडिया में जो है लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है। मीडिया एक्सपोजर भी इतना नहीं है। इफ यू सी द अर्बन एरिया, तो अर्बन एरियाज में मीडिया को बहुत वो है, मीडिया के एक्सपोजर्स है, लोग मीडियाज पे देखते हैं, न्यूज देखते हैं, लेकिन जो है गांव में इतने मीडिया का एक्सपोजर नहीं है। पावर्टी भी जो है वो रूरल इंडिया में ज्यादा है कंपेयर टू द अर्बन इंडिया। ओके, so all these points are okay, what are the various characteristics of the rural India? The urban characteristics, the following are the main characteristics of the urban India. First is the social heterogeneity, that means the people are heterogeneous, that means कि urban people जो है वो एक दूसरे से अलग है। These are wide differences in the way of the life of the urban people. See, मैंने अभी आपको explain किया कि अर्बन पीपल जो है वो अलग है, रूरल पीपल जो अलग है। द अर्बन masses are mainly diverse in nature, especially the major metro cities like the Mumbai and the Delhi. People speak different languages, different custom. That means urban के जो लोग हैं वो अलग languages, जैसे गांव में एक particular caste जो है वो dominate करता है, but urban area में ऐसा नहीं होता है। urban area में अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग languages बोलते हैं, उनके customs अलग अलग होते हैं, उनकी food habits अलग अलग होती है, उनके traditions अलग अलग होते हैं। स्पेशली मेट्रोपॉलिटन cities जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे जो लोग हैं वो हाइड्रोजीनियस है, सब लोग अलग अलग है, एक जैसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें उन लोगों में नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज द सेकेंडरी रिलेशन। जैसे हमने रूरल इंडिया में देखा था कि पीपल हैव फेस टू फेस रिलेशनशिप, पीपल हैविंग क्लोज रिलेशनशिप, वहाँ पे सोशल मीडिया इंटरेक्शन इतना नहीं है। बट इफ यू सी इन द अर्बन एरियाज, पीपल आर मोस्टली इनडिफरेंट टूवर्ड वन अनदर। दैट मीन्स किसी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमारे फ्रेंड है, लेकिन हम उनको फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, बिकॉज पीपल रेयरली टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द अदर। समटाइम इट इज पॉसिबल कि वी डोंट नो आवर नेबर्स ऑल्सो। ओके, हम अपने नेबर्स के साथ भी स्ट्रेंजर बिहेव करते हैं। सपोज इफ आई लिव इन द 5th फ्लोर, कि 6th फ्लोर पे कौन रहता है या 7th फ्लोर पे कौन रहता है, या मेरी बिल्डिंग में 10th फ्लोर पे कौन है, आई डोंट नो। तो जो रिलेशनशिप है अर्बन एरियाज में वो सेकेंडरी है। डेट मीन्स हर इंसान जो अर्बन एरिया में है उसका इंडिविजुअल अप्रोच है, इंडिविजुअल एटीट्यूड है, और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। Third is a social mobility. Urban people are socially movable as compared to the rural folk. Social mobility refers to the movement of the people from the one social status to other. Okay, that means जो रूरल इंडिया में लोग हैं वो उनकी सोशल मोबिलिटी है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। सपोज अगर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको कम सैलरी मिल रही है, कोई और जॉब में हमको अलग सैलरी मिल रही है, या यहाँ पे हमारी स्टेटस कम है, हमको कहीं और जाना है, तो वो मूव करते रहते हैं। बट अर्बन पीपल जो है वो मूव करते हैं, बट जो रूरल पीपल है वो इतने जल्दी मूव नहीं करते। ओके, रूरल इंडिया में एक स्टेटस है कि इफ यू बर्थ इन दैट पर्टिकुलर फैमिली, आपको उसी फैमिली से हेरिडिटी में है, आपका हेरिडिटी से उसी फैमिली में। बट अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता है। वेदर आप कोई भी फैमिली में बॉर्न हुए हो, अगर आप विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे हमारी कंट्री में अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, रूरल इंडिया में जो है बहुत ज्यादा है, सॉरी अर्बन इंडिया में कम है और रूरल इंडिया में ज्यादा है। जैसे गांव में हमने देखा कि 68% जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। ओके, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, देखो वहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट रो में इंडिया, रशिया, यूएसए, जापान, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज है, अगर आप वो लाइन देखोगे तो 31% इन इंडिया, 74% रशिया, 82% यूएसए, 91% जापान, यूके 80% एंड ऑस्ट्रेलिया 89%। अगर आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, दैट इज अराउंड 31%। दैट मीन्स के मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस लिव इन द विलेज। दैट मीन्स इंडिया के गांव में लोग ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू द शहर। Okay, next point is a location pattern. The urban population is located in about 5,545 towns and cities. The towns and cities are broadly divided into 6 such category: class 1, class 2, class 3. ओके, पॉपुलेशन की क्राइटेरिया है कि कितनी पॉपुलेशन कौन से क्लास में रहती है। क्लास 1 में 1 लाख एंड अबाउ, क्लास 2 में 50,000। दैट मींस एक लोकेशन पैटर्न कि कौन से लोकेशन पे आप रहते हो। सो फॉर एग्जांपल सी अगर मैं बोलूं जुहू, विले पार्ले, खार, दिस इज कंपेयर्ड एज अ हाई लोकेशन। पीपल जो ये पे रहते हैं उनको क्लास 1 बोला जाता है। ओके, और जो दूसरे एरियाज में रहते हैं थोड़े लो एरियाज में उनको सेकंड क्लास या थर्ड क्लास,
ओके, ये डिवाइड किया हुआ है, वो हम लोग आगे के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ द क्लास इज डिफरेंशिएटेड. एंड लिटरेसी रेट, द अर्बन लिटरेसी रेट इज कंपैरेटिवली हाई. वी हैव सीन कि जो रूरल इंडिया है, जो हमारा गांव है, उसमें इतने लोग लिटरेट नहीं रहते, बट इंडिया में जो अर्बन एरियाज में है वो लोग लिटरेट है. Then there is a occupation. The urban population is mostly engaged in the service sector, followed by the secondary sector. See, Indian sector has three. Indian economy has three sector: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तो हमारा जो रूरल इंडिया है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर. बट हमारा जो अर्बन इंडिया है वो सेकेंडरी सेक्टर पे भी काम करता है एंड टर्शियरी सेक्टर पे भी काम करता है. सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन. उसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरिया फेस अनएम्प्लॉयमेंट, हाउएवर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज डिक्लाइन इन द अर्बन एरियाज. जैसे मैंने बोला है कि इंडिया में क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप चाहे शहर की बात करो या चाहे गांव की बात करो, इंडिया में हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है. बट स्लोली जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारी कंट्री से कम हो रहा है. क्यों हमारी कंट्री से कम हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेट हो रही है. बिकॉज इंडस्ट्रीज लोकेट हो रही है, इंडस्ट्रीज के लोकेशन की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है. बिकॉज पीपल आर गेटिंग जॉब, तो जॉब की वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री का कम हो रहा है. Then media exposure, the media exposure of the urban population, as we see कि अर्बन में मीडिया एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है. मीडिया जो है विलेज के लोगों को इतना कवर नहीं करता है, वो यहाँ पे इतना ब्रेकिंग न्यूज जैसे नहीं होता है, यहाँ पे लोग इतने टेलीविजन नहीं देखते हैं. एंड इफ दे सी द टेलीविजन ऑल्सो दे नॉर्मली सी द सीरियल्स एंड ऑल दैट. बट अगर आप अर्बन इंडिया देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया है, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, इंटरनेट. ओके, एंड पीपल आर एक्टिव इन द सोशल मीडिया ऑल्सो. मीडिया का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है. ट्विटर पे भी लोग या फिर इंस्टाग्राम पे भी लोग अपना व्यू पॉइंट्स रखते हैं, बिकॉज पीपल आर लिटरेट ओवर हियर. नेक्स्ट, पावर्टी. द पावर्टी इन द अर्बन एरियाज इज लोअर. ओके, जैसे रूरल इंडिया में, गांव में पावर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्बन इंडिया में पावर्टी इतनी ज्यादा नहीं है. ओके, see, the poverty in the urban areas is lower as compared to the rural areas in 2011-12. People living below poverty line in the urban area is 13.70. That means हमारे यहाँ पे जो अर्बन जो लोग हैं उनकी पावर्टी रेट इतनी हाई नहीं है. Okay, so these are the various characteristics of the urban India. Okay, we dekha. Okay, now let's see that tribal characteristics. What is tribal? A tribe is a community occupying a common geographical area and having a common languages and the culture. See, we have seen the urban India, we have seen the rural India. Okay, अर्बन इंडिया भी है, रूरल इंडिया भी है. डेट मीन्स गांव भी है, शहर भी है, बट एक और कैटेगरी है इंडिया में, डेट इज ट्राइबल. ट्राइब, ये ट्राइब कम्युनिटी है जो ज्योग्राफी एरिया में रहती है, एक ज्योग्राफिकल, एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, और वहाँ के लोगों की एक सेम लैंग्वेज होती है और वो सेम कल्चर को फॉलो करते हैं. द ट्राइब्स आर ऑफ्टन कॉल्ड एज regions because originally they used to live in the jungles and the hilly regions. Okay, ये लोग जो है वो जंगल्स में रहते हैं या हिली, जो हिली इंडिया में उसमें रहते हैं. Some scholars are the viewpoint that the lower caste who resisted oppression of the upper caste and preferred to live in the independence life retired to the forest, and today they are called the tribes of India. इसी हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम था, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण्स, वैश्यास एंड शूद्रास एंड क्षत्रियास. तो सोसाइटी को डिवाइड किया था कि ये कैटेगरी के लोग हैं वो अपर कास्ट के हैं, ये कैटेगरी के लोग हैं वो लोअर कास्ट के. तो सम स्कॉलर्स ने ये व्यू पॉइंट लगाया कि वो पीपल जो लोअर कास्ट के हैं, जिनको सोसाइटी निग्लेक्ट करती है. ओके, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट लाइफ जीना पड़ता था, इसीलिए वो लोग ने अपने आप को सोसाइटी से अलग होकर थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया में चले गए, हिली रीजन्स में चले गए या फिर जंगल्स में चले गए. ओके, ताकि वो आराम से फॉरेस्ट में रह सके. इसीलिए इनको बोला गया है ट्राइब्स ऑफ इंडिया. Tribes are referred as a scheduled tribes in the Indian Constitution. और ये जो पीपल जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ST, that is scheduled tribes बोला गया. It was Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of drafting committee. That means the person who has written the Constitution of India. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? B.R. अम्बेडकर ने. ओके, B.R. अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा तो उन्होंने ये जो ट्राइबल पीपल है उनको क्या रेफर किया? एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ST.
Okay, now according to 2011 census, the scheduled tribes counted for 104.3 million people. Okay, that means कि total जो census report है हमारे पास, तो 104.2 million people जो है, that work out to 8.6% of the total population. That means कि scheduled tribe जो है हमारे country में total population के around 8.6% है. Okay, now let's see what are the characteristics. The following are the main characteristics of the tribal India. ओके, मेन ट्राइबल इंडिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सी वी हैव सीन अर्बन पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स, वी हैव सीन द रूरल पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ लेट्स सी ये ट्राइबल पीपल जो हिली रीजन्स पे रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो छोटी अब जो अलग अलग जगह पे रहते हैं जोग्राफिकल एरियाज में, उनकी कॉमन ट्रेटिस क्या है, वो कौन से कहाँ पर रहते हैं. अ ट्राइब हैज डेफिनेट टेरिटरी, वो कहाँ पे रहते हैं, नागास इन नागालैंड, खासियास इन आसाम, भील्स इन मध्य प्रदेश, थोडास इन नीलगिरीज हिल्स और तमिलनाडु. सी ये वो सारी जगह है जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, जैसे नागास है, खासास है, बिलीस है, ये जगह पे बताया गया है. it is to be noted that the certain tribes are found across the state, and जरूरी नहीं है कि जो ट्राइबल पीपल है वो ये चार जगह पे ही रहते हैं. some states like for example गोंड्स ट्राइब्स, देखो ब्रैकेट में लिखा है, is found in the मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र also. okay, कुछ लोग हैं भील्स भी जो है वो वेस्टर्न रीजन्स, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान में भी मिलते हैं. तो ये ट्राइबल का जो मेन लोकेशन है वो ये चार लोकेशन है, बट ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं मिलते, ये लोग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे एरियाज में भी जो है वो रहते हैं. ओके, सेकेंड इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर हैविंग अ कॉमन नेम्स, उनके नेम जो है वो कॉमन है. ईच ट्राइब्स इज नोन बाय हिज डिस्टिंक्टिव नेम, नेम सच एज गोंस, भील्स, नागा, निम्बू, मुंडा, खासी, मीना, संथल, कोटा एक्सेट्रा. ओके, ये सारे नाम से जो ये ट्राइबल पीपल के रहते हैं. कॉमन लैंग्वेजेस, द पीपल of the tribe speak a language. Okay, most common language contributes to the relationship among the tribal language do not have a script. That means कि ये जो tribal people है उनकी भी common language है, जो language वो लोग आराम से जो है एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है अभी. कॉमन कल्चर, each tribe has its own culture. The member of the particular tribe follow a common tradition, मोरल्स एंड द वैल्यूज. दैट मीन्स कि ये जो ट्राइबल पीपल है उनके अपने खुद के कल्चर होते हैं और वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और अपने मोरल्स को, अपने वैल्यूज को ही फाइंड आउट करते हैं. देन Endogenous group, normally the tribal members are the endogenous group, generally they marry within their own tribal. मतलब उनकी जब शादी होती है तो वो अपने ग्रुप में ही शादी करते हैं. That means they do marriage outside जाके नहीं करते. I'm not talking about the intercaste marriage. Intercaste is a different thing. वो लोग जो उनके ही ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके ही ग्रुप के होते हैं, बस उसमें ही शादी करते हैं. The tribal practice they marry within endogenous to maintain the purity of blood and culture. ओके, डेट मीन्स उनको ऐसा लगता है कि हमारे ब्लड में प्यूरिटी होनी चाहिए जब सेम वही इसमें शादी होगी. तो दिस आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल. ओके, नेक्स्ट रीजनल कॉन्सेंट्रेशन. The tribal population is mostly concentrated in the 4 region. के कौन से regions में है? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में. majority of the tribal live in the middle belt. हिमालयस region में भी रहते हैं. ओके, तो ये सारी जगह पर है जहाँ पे ये regional people रहते हैं. Okay, now next is the occupation. Majority of the tribal engage in the agriculture. Definitely वो hilly region में रहते हैं, forest में रहते हैं. तो about 80 to 90% जो ये population है उनका occupation जो है वो है agriculture. और caste system, जनरली द ट्राइबल्स डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम. जो हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम है, लेकिन ये जो पीपल है, ट्राइबल पीपल है, वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानते. ओके, दे डोंट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम. हाउएवर द ट्राइबल कम्युनिटी द हायरार्की, लेकिन उनकी हायरार्की जो है वो इसमें डिवाइड की है 4 इसमें. फर्स्ट इज हंटिंग एंड फाइटिंग, सेकेंड वन इज वर्शिपिंग, थर्ड इज कल्टिवेशन एंड फोर्थ इज सिंगिंग एंड डांसिंग. ये 4 कैटेगरीज में जो है उनको डिवाइड किया हुआ है. नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ वीमेन. द स्टेटस ऑफ वीमेन डिफर फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब. स्टेटस ऑफ वीमेन भी जो है वो ट्राइब टू ट्राइब है. कोई कुछ ऐसा ट्राइब है जहाँ पे स्टेटस ऑफ वीमेन हाई है, कुछ ऐसा ट्राइबल विलेज है जिसमें स्टेटस ऑफ वीमेन जो है वो लो है. दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन कि वो पर्टिकुलर वीमेन कौन से ट्राइब से जो है वो बिलोंग करती है. ओके, तो दिस आर द वेरियस थिंग दैट एग्जिस्ट इन द ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स.